Good morning students, welcomes you in your English class. Today we will start our second term courses from English Webs, and in second term we will start lesson 8 Galileo Galilei. ओके स्टूडेंट, आज हम लोग अपनी अंग्रेजी की कक्षा में अंग्रेजी वेब के सेकेंड टर्म का पहला चैप्टर गैलीलियो गैलीली लेसन 8 पढ़ेंगे, जो कि पेज नंबर 60 पे है. सो एवरी स्टूडेंट ओपन पेज नंबर 60, Galileo Galilei lesson 8. Okay student, so first of all I would like to tell you about Galileo Galilei, that who was Galileo Galilei. बच्चों, गैलीलियो गैलीली कौन थे आपको पता है? अगर पता है तो नहीं, बहुत अच्छी बात है. नहीं पता है तो आपको जरूर ये जानना चाहिए कि गैलीलियो गैलीली जो थे एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर थे. एस्ट्रोनॉट नहीं, ये आप ध्यान रखिएगा. एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोनॉट में लोग कंफ्यूज होते हैं. एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो स्पेस में जाते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं वो स्पेस की चीज़ों का अध्ययन ज़मीन पर रहकर ही करते हैं. तो गैलीलियो गैलीली एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे हु चेंज द बिलीफ ऑफ पीपल अबाउट द यूनिवर्स एंड द अर्थ. वो वे व्यक्ति थे जिन्होंने लोगों की आस्था, लोगों का जो विश्वास था पृथ्वी पर और यूनिवर्स पर कि पृथ्वी जो है एक जगह स्थित है और बाकी सब उसका चक्कर लगाते हैं, तो ये विश्वास को उन्होंने गलत साबित किया और इसको प्रूफ भी किया. ओके स्टूडेंट, नाउ फर्स्टली सी ऑल द मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर एट अ ग्लैंस. सी हियर मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर. फर्स्ट वन इज ancient belief of the people about universe and earth. Next, birth of Galileo Galilei. Third, Galileo joined the University of Pisa as a medical student but liked to study mathematics and astronomy. At 17, Galileo became the head of the department of mathematics at university. He invented first ever thermometer and his own telescope to see the Milky Way. His discoveries about the real universe. He published paper to make people aware about the fact of his discoveries. Inquisition became angry and imprisoned him in his own house. Galileo had no effect of all this. Okay student, these are the main points of the chapter. So see all point one by one. Firstly, ancient belief about universe and earth. See here it is written, who would think that one person could change the way we see the universe? Who would even try? However, it really happened more than 400 years ago. It happened because one man dared to think differently. You see, back then the people thought that the earth stood still. It did not spin around the sun. The earth was the center of the universe and everything including sun orbited the earth. Well, that is not really true, but everyone believed it was the truth then. Also, nobody wanted to argue against it because they feared being to throw into the prison or facing some terrible punishment. So everyone just kept on thinking happily that the earth stood still in space, and it made sense really because no one can ever feel that it is moving. Galileo was the first astronomer to find out what the universe is made up of and what actually goes on in the solar system. तो बच्चों, सबसे पहले अगर शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में कोई ये सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था कि यूनिवर्स को कैसे, मतलब क्या है. जो लोग मानते थे उसी पर लोग विश्वास करते थे, यानी जो उन्हें बताया जाता था उसी पर विश्वास करते थे. ये लगभग 400 साल पहले की बात है जब एक आदमी ने कुछ अलग सोचा. और अगर आप पीछे की बात सोचो तो आप यह जानोगे, यह पता चलेगा कि लोग पहले ये मानते थे कि पृथ्वी एक जगह पर स्थिर है, वो घूमती नहीं है. सभी चीज़ यूनिवर्स में जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, यहाँ तक कि सूर्य भी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है. लेकिन ये सच नहीं था. हालांकि सब लोग इसे मानते थे लेकिन ये सच नहीं था. लेकिन कोई इसका विरोध नहीं कर पाता था क्योंकि उन्हें पता था कि लोग उन्हें गलत समझेंगे, लोग उन्हें पनिशमेंट देंगे, सजा देंगे. इसलिए सभी लोग विश्वास करते थे कि हाँ, पृथ्वी स्थिर है. ये गैलीलियो थे पहले एस्ट्रोनॉमर जिन्होंने ये पता लगाया कि यूनिवर्स का क्या बनावट है और यूनिवर्स में क्या चलता है. नाउ सी द सेकेंड पॉइंट, बर्थ ऑफ गैलीलियो गैलीली. On 15th February 1564 in Pisa, Italy, a little boy was born and his surname was Galilei. His parents must have been liked poetry because they didn't
call him something ordinary like George Galilei or Fred Galilei। तो बच्चों 15 जनवरी 1564 को पीसा के इटली शहर में एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम गैलीलियो गैलीली था, मतलब गैलीली था सरनेम उसका। और उसके माता पिता जो थे शायद पोइट्री पसंद करते थे, इसीलिए उसका कोई कॉमन नाम नहीं रखे जैसे जॉर्ज गैलीली या फ्रेड गैलीली। उन्होंने एक लयात्मक नाम रखा और वो था गैलीलियो गैलीली, जो कि थोड़ा अलग हटके था। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द थर्ड पॉइंट। Galileo joined the University of Pisa as a medical student but liked to study mathematics and astronomy. When Galileo grew older, his father wanted him to be a doctor, so he sent him to a university to study medicine. Many of Galileo's ancestors were doctors, so he was accepted to follow their footsteps. In 1581, he joined the University of Pisa as a medical student. So in this way, you can study. तो here it says, यहाँ पे ये बता रहा है कि जब गैलीलियो बड़े हुए तो उनके पिताजी चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, इसीलिए उनको मेडिकल इंस्टीट्यूट में भेजा। लेकिन और उनके ख़ानदान में जो थे बहुत से लोग डॉक्टर थे, पीछे उनके पूर्वज बहुत से डॉक्टर थे, इसलिए उनको ऐसा सोचा जा रहा था कि वो भी डॉक्टर बनेंगे। और उन्होंने इसीलिए ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा एक मेडिकल स्टूडेंट की तरह। लेकिन यहाँ नीचे देखिए लिखा है, एट द यूनिवर्सिटी अ फ्रेंड ऑस्टिलियो रिकी चेंज द कोर्स ऑफ गैलीलियोज लाइफ बाई इंट्रोड्यूसिंग हिम टू मैथमेटिक्स। गैलीलियो रियलाइज्ड दैट ही डिडंट रियली एंजॉय स्टडिंग medicine. He now wanted to study mathematics and astronomy, so he left the medical school and became a mathematician instead. तो बच्चों वहाँ उस इंस्टीट्यूट में उनको एक फ्रेंड मिले ऑस्ट्रेलियो रिकी। उन्होंने जब उन्हें मैथ से इंट्रोड्यूस कराया तो उन्हें मैथ बहुत अच्छा लगा और उनको ये समझ में आया कि उनकी रुचि जो है वो मेडिसिन में नहीं है, इसलिए उन्होंने मैथ को ज्वाइन कर लिया और मैथ पढ़ना शुरू कर दिया। और नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज गैलीलियो बिकम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एट यूनिवर्सिटी एट द एज ऑफ 17. See here it is written, when he was 17, Galileo noticed a lamp swinging overhead in a cathedral, Pisa. In those days, lamps were hung by long rods from the ceilings. Curious to find out how long it took the lamp to swing back and forth, he used his pulse to time the long and short wings. Galileo discovered something that no one else had ever realized. Whatever long or short each swing took exactly the same time. This discovery was found useful for making and running clocks. Galileo became the famous and soon he became the head of the department of mathematics and at the university. तो बच्चों जब वो 17 साल के थे तब उन्होंने एक चर्च में लालटेन को लटकते देखा जो कि एक लंबे से रॉड पे लटक रहा था और झूल रहा था। तो उन्होंने सोचा एक अलग इसकी कितना समय ले रहा है ये दोनों वापस आने और जाने में, और उन्होंने अपने पल्स का यूज करके जब उसको देखा तो उन्होंने पाया कि दोनों समान समय ले रहा है। तो ये डिस्कवरी भी आगे घड़ी को बनाने में काम आई और इन्हीं सब उनकी डिस्कवरीज की वजह से उन्हें फेमस हो गए यानी प्रसिद्ध हो गए और उन्हें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बना दिया गया। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट। ही इन्वेंटेड हिज ओन telescope and first thermometer. Okay student, so यहाँ अब आप देखिए लिखा हुआ है, इन हिज स्पेयर टाइम टू गैलीलियो वुड डू वेरियस थिंग्स। गैलीलियो जो है अपने खाली समय में अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते थे और इसी तरह के एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि जब उन्होंने एक ग्लास के बल्ब में पानी रखा हुआ है तो वो पानी जब गर्म होता है तो वो ऊपर उठ जाता है और ठंडा होता है तो फिर नीचे आ जाता है। इस चीज़ को ध्यान देते हुए उन्होंने पहला थर्मोमीटर का आविष्कार किया। In 1609, Galileo heard about a new invention called the telescope, which had been made of with two lenses. He decided to build a telescope and use it to look at the universe. Until then, people had only been able to guess what the universe was, but Galileo was actually going to look at it and find out the truth. So he built a telescope that made things appear to be 20 times bigger than they एक्चुअली वर। तो 1609 में गैलीलियो को मालूम पड़ा कि किसी ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया है तो उन्होंने एक
अपना टेलीस्कोप बनाया जिसमें पावरफुल लेंसेस लगाएं और जो कि 20 गुना बड़ा चीज़ों को दिखाता था। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हिज डिस्कवरीज अबाउट रियल यूनिवर्स। तो बच्चों, उन्होंने जब मिल्की वे गैलेक्सी को देखा तो वहाँ देखा कि वो बहुत से सितारे दूर दूर हैं और यूनिवर्स जो है वो पूरा जो है ऐसा नहीं है जैसा कि लोग सोचते हैं। यहाँ पे कुछ भी एक समान दूरी पर नहीं है, सब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी भी चक्कर लगाती है। गैलीलियो ने पहले बार ये बताया कि हमारा जो विश्वास है वो गलत है। उसमें उन्होंने चांद पर देखा कि चांद गोल नहीं है बल्कि वहाँ पे क्रेटर्स हैं यानी पहाड़ हैं। ही ऑब्जर्व दैट प्लैनेट्स मरकरी एंड वीनस पास थ्रू फेजेस जस्ट लाइक द मून। उन्होंने ये भी देखा कि मरकरी और वीनस जो है वो मून की तरह चक्कर लगाते हैं किसी का, और इस तरह से उन्होंने पता लगाया कि वे पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, न कि सूर्य चक्कर लगाता है। इस तरह से उन्होंने और भी बहुत कुछ खोजा। उन्होंने खोजा कि डिस्कवर किया पहली बार कि जुपिटर जो है उसके भी 4 मून हैं, यानी जुपिटर का भी कोई चक्कर लगाता है। इस तरह से उन्होंने बहुत सी चीज़ें खोजी और उनके खोजों ने उन्हें धीरे 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 बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कर दिया। और इस प्रसिद्धि के कारण धीरे धीरे उनसे जलने वाले भी लोग हो गए, मगर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो अपने काम को करते रहे। जैसा कि देखिए लास्ट में लिखा हुआ है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट गैलीलियोस डिस्कवरी वॉज दैट ही वॉज नॉट guessing. He could clearly prove to anyone that what he had discovered was true. He could demonstrate and repeat his experiment to do so. सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो थी गैलीलियो के प्रयोगों की वो ये थी कि उन्होंने कोई भी चीज़ गैस नहीं किया था, वो सब कुछ प्रूफ कर सकते थे कि उनका जो बात है वो एक एक बात सच है। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गैलीलियो began to publish paper to make people aware about his discoveries. Galileo spent many happy hours looking through his telescope. After some research, he realized that what everyone believed was about the Earth standing still was actually wrong. In fact, the Earth revolves around the Sun. This had already been settled by Copernicus. Galileo began to publish papers about his discoveries. This enraged many people. तो बच्चों, यहाँ अब गैलीलियो ने ये वो अपने टेलीस्कोप के साथ बहुत समय बिताया तो उनको ये पूरा मालूम हो गया, पता चल गया कि पृथ्वी जो है वो स्टिल नहीं है, अपनी पृथ्वी रुकी नहीं है। जो लोग ये मानते हैं वो सोच गलत है। वास्तव में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इस बात को उन्होंने प्रूफ किया, जिसे कि पहले कोपरनिकस ने बताया था। और इस सब चीज़ों से लोगों को अवेयर करवाने के लिए उन्होंने अपना पब्लिश पेपर किया, यानी पेपर छापना भी शुरू किया, जिससे बहुत लोगों के सच के बारे में मालूम पड़ा। नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, इंक्विजिशन बिकम एंग्री एंड इम्प्रिजन्ड हिम इन हिज ओन हाउस। तो बच्चों यहाँ देखिए लिखा है, जब उनकी प्रसिद्धि फैल गई, सो गैलीलियो हैड टू फेस इंक्विजिशन एंड वाज आस्क्ड टू राइट अ लेटर ऑफ एपोलॉजी फॉर मेकिंग अप सिली स्टोरीज। दे ऑर्डर्ड हिम टू डिक्लेयर दैट द अर्थ स्टैंड स्टिल एंड दैट सन revolves around it. Of course, it wasn't a scientific truth, so Galileo just went on writing about his work, and he even published a book. This made Inquisition so angry that they sentenced him to life imprisonment, but by then Galileo was quite old and not in good health, so they put him under the house arrest instead. तो बच्चों, गैलीलियो जब प्रसिद्ध होने लगे तो इंक्विजिशन यानी जो वहाँ की सरकार की जांच प्रणाली थी उनको गुस्सा आया और वो लोग उनसे एपोलॉजी यानी माफ़ी का एक पत्र लिखने के लिए बोले कि आप बेकार में कहानी बना रहे हैं, इसलिए आप माफ़ीनामा लिखिए। लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उन्हें अपने प्रयोग करते रहें। तो उनको और गुस्सा आ गया इंक्विजिशन को, और उन्होंने उन्हें सज़ा देने के लिए जेल में डालने का सोचा, लेकिन उनकी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए उन्हें घर में ही जेल में रखा गया। ओके स्टूडेंट, बट गैलीलियो हैड नो एनी इफेक्ट ऑफ ऑल दिस, दैट इज़ द लास्ट पॉइंट. See here it is written, Galileo just went on studying the universe, doing his experiment and writing books without taking much notice. He did not mind being in his house anyway. Galileo was indeed brave to dare to be different, and we are all very glad that the earth isn't standing still, because if it was, it would tumble into the space and we would all fall off
A popular legend holds that Galileo, after publicly announcing that the earth does not move, arose from his knees and exclaimed, "E pur si move," meaning nevertheless it does move. तो बच्चों, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को जारी रखा। अपने घर में वो कैद थे, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ये गैलीलियो ने हिम्मत की हमें अलग सोचने के लिए। तो इसको जानकर हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि अगर वास्तव में पृथ्वी स्थिर होती तो हम लोग उसमें टिक नहीं पाते, हम लोग गिर जाते स्पेस में। और गैलीलियो के बारे में एक प्रसिद्ध कथा कही जाती है कि अपने आखिरी समय में जब उन्होंने अनाउंस किया था कि पृथ्वी घूमती नहीं है, तो वो अपने घुटनों से फिर खड़े होते हैं और आखिरी में फिर बोलते हैं, गुनगुनाते हैं कि ये घूमती तो है। यानी दबाव में उन्होंने इंक्विजिशन की डिक्लेयर तो किया, मगर लास्ट समय भी उन्होंने बोला कि नहीं, पृथ्वी घूमती है। ओके स्टूडेंट, नाउ सी ऑल द चैप्टर वेरी केयरफुली एंड डू एक्सरसाइज बाय योर ओन सेल्फ। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।